Hello guys, I welcome you today at MASR Motivation. Today we will talk a JEE aspirant. His name is Mohammed Talha. What's your name? Mohammed Talha, guys. Hello, guys, and first of all, I thank you to Amir sir to call me on channel, and I thankful to this my sir. He guided me in 10th, 12th, and in my JEE preparation in a very best way. Okay, thank you. So first of all, we have some question answer session with you. Mohammed Talha, what is your JEE mains? What is JEE mains? Just tell our viewers. Guys, JEE Mains is a national level entrance examination for engineering entrance, and on the score of in the basis of JEE Mains score, we take admission into NITs, IIITs, GFTIs, and other government funded institution and other good private institute like Thapar University, BITS Mesra, and Amrita University. Okay, thank you for telling us about JEE Mains. I will request to you saying aloud. And what is JEE Advance? Mohammed Talha, tell us. Sir, JEE Advance is conducted by NTA, and JEE Advance is after the examination, just after the JEE Mains. We have to qualify JEE Mains for JEE Advance examination, and for JEE Advance examination have a better quality question and more tricky question than JEE Mains, and weightage of advance is about 360 to 400 marks, and weightage of JEE Mains is 300 marks. Thank you. We will talk about exam patterns of JEE Mains for physics, chemistry and mathematics. So JEE Mains consists of 3 subjects: physics, chemistry and math, and each subject have 30 questions, and one subject has 30 question, 20 of MCQs, multiple choice question, and 10 of integer type. In integer type question we have to attempt only 5 questions, and in MCQs we have to attempt all the 20 questions. If you incorrect the question, we get -1, and all other cases we get +4. And if incorrect the question in integer type questions, so we have not negative marking at that place. We have only 0 or +4 marking. Okay. If we talk about how much time required for JEE preparation. The time required minimum 2 years of preparation required for JEE Mains preparation. थैंक यू. आपने किस तरह से टाइम टेबल बनाया था? आप हमें थोड़ा सा अपने स्ट्रेटजी शेयर कीजिए टाइम टेबल की हमारे व्यूअर्स के साथ, सो दैट जो बच्चे अब JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021 के लिए, 2022 के लिए, 2023 के लिए, सो उनको वो कुछ हेल्प कर सके. सर, मेरा टाइम टेबल तो मतलब चेंज होता रहता था. जब मेंस करीब आता था तो मेरा टाइम टेबल कुछ और होता था, और जब बोर्ड्स करीब आते थे तो मेरा टाइम टेबल कुछ और होता था. मतलब ऐसा नहीं होता था कि मैं एक ही चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ लगातार. मतलब जैसे बोर्ड करीब आ गए तो मैंने थोड़ा मेंस की प्रिपरेशन थोड़ी डाउन कर दी और बोर्ड्स की प्रिपरेशन को थोड़ा प्रायोरिटी ज़्यादा दे दी, जिससे कि मतलब अपना बोर्ड का स्कोर भी सुधर जाए. ऐसा ना हो कि केवल अपने JEE मेंस के वो मतलब करने के उसमें आप अपना बोर्ड्स भी बिगाड़ लें. और जब आपका JEE मेंस करीब आता था तो मैं क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करता था कंपेयर टू थ्योरी को. मैं ऐसा करता था कि मतलब सिर्फ पढ़ लिया और फिर क्वेश्चन लगाए. और अगर टाइम टेबल की बात करूँ तो मैं मतलब सुबह को उठकर थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी रनिंग कर ली 1 घंटे या आधा घंटा, फिर उसके बाद फ्रेश होने के बाद अपनी स्टडी करने बैठ गए. फिर मतलब 12 साढ़े 12 बजे तक अपना मतलब क्वेश्चंस लगा लिए. मैं मिनिमम टू 80 क्वेश्चंस तो लगा ही लेता था, 60 to 80 क्वेश्चन. Thank you. If we talk about the relevant test series which helps you during the preparation and how they boost your energy, test series के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Sir, I joined the online test series because JEE Mains is also conducted on online level. मतलब we have give exam on CBT computer based test होता है, तो हमें मतलब इसी एनवायरनमेंट में ढलना पड़ता है जैसे मतलब ऑनलाइन हम एग्ज़ाम में बैठे हैं. तो इसलिए मैंने एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करी, एलन टेस्ट सीरीज़. तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई मतलब एग्ज़ाम टेम्परामेंट को बनाए रखने के लिए. थैंक यू. और हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह का फूड JEE
प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट या नीट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट या एनटीएससी या केवीपीवाई की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट, आई मीन जो बोर्ड के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, वे स्टूडेंट्स अपने डाइट का, फूड का और फीडिंग हैबिट्स का कैसे ध्यान रखें और कैसे हेल्दी रहें, मोटिवेटेड रहें, कैसे उनका मेंटल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस और बायोलॉजिकल क्लॉक सेट रहे, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। अपने हमारे व्यूअर्स को इसकी जानकारी दीजिए। मोहम्मद तला। सर, डाइट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ। मतलब यू हैव टू अवॉइड ऑयली फूड एंड वी हैव टू ईट ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एंड वी मस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फूड्स को मतलब प्रायोरिटी पे रखिए अपनी खाने में, तो जिससे कि आपका मतलब बॉडी में मतलब ऐसा ना हो कि आप बीमार हो जाएं और आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाए। थैंक यू। हम ये जानना चाहते हैं कि बोर्ड के साथ कंपटीशन को कैसे मैनेज आपने किया है। आपने बोर्ड के भी अभी आपने बोर्ड की प्रिपरेशन की है क्योंकि और कंपटीशन की भी, तो आप इन चीज़ों को एक जेई एस्पिरेंट हो या नीट एस्पिरेंट हो या एनटीएससी या केवीपीवाई एस्पिरेंट हो, तो वो किस तरह से इन सब चीज़ों को बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव चीज़ों को कैसे मैनेज करें और आपने कैसे की है, अपनी स्ट्रेटजी शेयर करें। सर, मैंने तो मतलब जो हमारा जेई मेंस होता है वो हमारा 11-12 के कोर्स से ही आता है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही आती है, तो मैंने उस पर फोकस थोड़ा कम करा था बोर्ड्स पर और मैंने जेई पे फोकस करा। मतलब अगर आप जेई कर लोगे तो बोर्ड्स तो आप वैसे भी कर लोगे। मतलब जब जेई की प्रिपरेशन आप करते हो, आप इतने सारे क्वेश्चन सोल्व करते हो तो थ्योरी आपकी वैसे भी क्लियर हो जाती है सारी, ऑलमोस्ट पूरी। तो आप ऐसा करिए कि आप मतलब जब आपका बोर्ड आए तो उससे 1-1.5 महीने पहले कंपटीशन की तैयारी कम कर दीजिए और बोर्ड के जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर मतलब 12 ईयर और जो सैम्पल पेपर आते हैं वो सवाल वगैरह के, उन्हें करनी स्टार्ट कर दीजिए। वो आपसे वैसे भी हो जाएंगे। थ्योरी आप बस जो चीज़ की कमी आती है जेई प्रिपरेशन में वो आपकी लिखने की स्पीड और आपकी मतलब लिखने की कैपेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि आप लगातार 2 सालों से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, तो उसे इन्हांस करना होता है लास्ट 2 मंथ्स में, और बोर्ड्स तो फिर हो ही जाता है आप जेई कर सकते हो। तो मोहम्मद तला, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जेई और नीट का हवा है, तो मतलब जो ये फोबिया है और के किस तरह से इस फोबिया को बच्चा टैकल कर सकता है, आप उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी सजेस्ट करना चाहेंगे और आपने कैसे किया। भाई जेई से क्या आपको भी डर लगता था जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। सर, ये तो बहुत ज़्यादा हुआ है मार्केट में, मतलब कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं, बस मतलब जेई नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ और यही सब है। मतलब बच्चा रात दिन ये पढ़ाई पे फोकस कम होता है और ये ज़्यादा सोचता है कि होगा नहीं होगा, तो मतलब इसमें ज़्यादा टाइम निकलता है। अगर बच्चे इस पे ज़्यादा फोकस करें कि हमें करना क्या है तो वो आसानी से निकाल सकते हैं। इनका बस हुआ है मतलब अगर आप मतलब खुले माइंड से देखें ना, तो एडवांस क्लियर करने के लिए 400 मार्क्स का पेपर आता है, उसमें से आपको 120 मार्क्स स्कोर करना है आईआईटी में सिलेक्शन के लिए। मैं मतलब सिर्फ सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो मतलब 120 भी आसानी से स्कोर किया जा सकता है। सबसे मेन चीज़ जो है ना, वो जो अच्छे लेवल से क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। मतलब अगर आप जेई प्रिपरेशन कर रहे हो तो 120 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन आपको रोज़ लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपका कुछ बन सकता है जेई मेंस या एडवांस में। मोहम्मद तरा, MA सर मोटिवेशन पर हम आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि टेस्ट एंड एनालिसिस ऑफ मिस्टेक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि लाइक जेई एंड नीट के बच्चे कैसे करें। सेल्फ स्टडी से तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। मतलब आप पे मैग्नीट्यूड तो आप लगाते हो लेकिन आप पे डायरेक्शन नहीं होती। वो आपने फॉर्मूला पढ़ोगा ना फिजिक्स में, वर्क डन इज इक्वल टू F.ds cos थीटा, तो खाली F पे भी डिपेंड नहीं करता और खाली DS पे भी डिपेंड नहीं करता। उनके बीच में जो एंगल है cos थीटा का, उस पर डिपेंड करता है। अगर cos थीटा 1 होगा तो आपका फुल वर्क एफिशिएंसी पूरी होगी, अगर आप cos थीटा 0 होगा तो 0 एफिशिएंसी होगी। तो डिपेंड्स द थिंग दैट मैटर इज़ योर डायरेक्शन और प्लस मैग्नीट्यूड। अगर आप मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जाते हो लेकिन आप मैग्नीट्यूड नहीं लगा रहे तो भी कुछ नहीं होने वाला, और अगर आप मतलब एक डायरेक्शन आप पर है, मतलब मैग्नीट्यूड आप लगा रहे हो लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तब भी कुछ नहीं होने वाला। तो आप पे एक सही गाइडेंस और सही मेंटर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आप क्लियर कर सकते हो। एक मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा पर्सनली कि जो गरीब बच्चे हैं, पुअर स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास फाइनेंशियल इतनी सामर्थ्यता नहीं है, और जो पुअर हैं
और वे बच्चे क्या जेई की प्रिपरेशन या नीट की या केवीपीवाई या एनटीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और वे किस तरह से इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं जो गरीब बच्चे हैं? सर अब तो आप ऑनलाइन मटेरियल पूरा सब अवेलेबल है यूट्यूब पर और गूगल पर, आप सर्च करिए, बस आपको बस सर्च करने की देर है, वहाँ कुछ ना कुछ तो आपको मतलब बस इंटरनेट में जब आपका पैसा खर्च होगा वो सिर्फ आपका डाटा में यूज़ होगा, बाकी सारा मटेरियल यूट्यूब पर पड़ा है, आप जो चैप्टर चाहते हैं वही चैप्टर मिल जाता है, तो इतना का बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप ऑनलाइन भी कर सकते हो अगर आप में कंसिस्टेंसी है। द मेन थिंग अगर मैं समझता हूँ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए इस कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क भी कुछ नहीं मायने रखता और आपकी इंटेलिजेंस भी कुछ मायने रखती है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंस हो तो आप तब भी सब कुछ निकाल सकते हो। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो आपने 26 अगस्त 2021 में अपनी सेकंड शिफ्ट में जेई मेंस का 4th अटेम्प्ट दिया है, आपका वो एग्ज़ाम कैसा गया, और उसके बारे में आप हमें मोटी मोटी बातें बताएं कि लेवल क्या था एग्जामिनेशन का, पोटेंशियल क्या था एग्जामिनेशन का। Sir, my JEE Mains examination of September held on 26 September. The paper was overall moderate to tough. And Okay. Chemistry was almost from NCERT. Means chemistry was easy to moderate. And physical chemistry questions have मतलब like tricky questions. ऑलमोस्ट NCERT कवर फ्रॉम NCERT एंड अगर आप बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स तो मॉडरेट टू टफ आई थी, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं आए थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए थे। आप जो है मतलब क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करिए और केमिस्ट्री में आप NCERT को पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करिए, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में। फिजिकल को तो आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मतलब फिजिक्स में आपको क्वेश्चंस लगाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मैथ जो थी वो टफ थी, मतलब मैथ टफर साइड पे थी, मैथ को मॉडरेट भी नहीं कह सकते। मैथ्स में ऐसा हुआ था कि जैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है और प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, तो दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ लिया। मैक्सिमम मिनिमा और मोनोटोनिसिटी को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ ली। तो इस तरह से क्वेश्चन मैथमेटिक्स में पूछे गए थे। तो मैथमेटिक्स तो मैं टफ ही कहूँगा, फिजिक्स को मैं मॉडरेट कहूँगा और केमिस्ट्री फ्रॉम NCERT करूँगा, मतलब ईजी आई थी लगभग। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स वाला पार्ट है उससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या हमें बताएंगे आप? मैथमेटिक्स में वो मैकेनिक्स में जो है वो क्वेश्चंस जो आए थे वो सर्कुलर मोशंस आए थे, मतलब एक स्ट्रिंग है वर्टिकल स्ट्रिंग से अटैच है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रही है, मतलब उसमें फोर्स कितनी लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल वो बताना था। और जैसे टाइम पीरियड से क्वेश्चन बहुत आता है, टाइम पीरियड तो आप रट लीजिए, उसमें टाइम पीरियड से क्वेश्चन हर साल आना है, हर शिफ्ट में आना है। मतलब कि इसकी लेंथ बढ़ा दी तो टाइम पीरियड पे इतना फ़र्क पड़ा और लेंथ घटा दी तो टाइम पीरियड पर इतना फ़र्क पड़ा। तो फिर मतलब जैसे हमारे जो शिफ्ट था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हमने जो है लेंथ जो है उसकी पेंडुलम की 0.01% से बढ़ा दी, तो हमारा पूरे दिन में कितने सेकंड डिक्रीज़ होंगे या कितने सेकंड्स इंक्रीज़ होंगे, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैकेनिक्स में मतलब इजी क्वेश्चन तो नहीं आए थे मैकेनिक्स में। थैंक यू। मैं जानना चाहूँगा कि ऑप्टिक्स के बारे में आप बताइए थोड़ा सा। आपकी शिफ्ट के अंदर जेई मेंस 4th अटेम्प्ट जो आपने अभी दिया है 2021 के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस थे ऑप्टिक्स से? सर प्रिज्म वाला क्वेश्चन था और एक कॉनकेव मिरर कॉनकेव लेंस वाला क्वेश्चन था, मतलब एक लेंस रख दिया और एक मिरर रख दिया, उसमें जो इमेज बन रही है वो वापस सेंटर पे बन रही है, उसका मैग्निफिकेशन मतलब ऐसा तो मुझे पूरा याद नहीं है। और अगर हम उसकी बात करें प्रिज्म वाले की तो मिनिमम डेविएशन वाले कॉन्सेप्ट है, साइन ऑफ डेल एम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2 इज इक्वल टू म्यू वाला कॉन्सेप्ट जो है उससे क्वेश्चन पूछे गए थे, एंगल ऑफ प्रिज्म पूछे गए थे, इस तरह से। आप मुझे ये बताइए इनऑर्गेनिक्स है जो D&F ब्लॉक है या ब्लॉक केमिस्ट्री है, उससे किस टाइप के सवाल या NCERT से भी थे या किसी और हायर लेवल के क्वेश्चंस थे, उनके बारे में आप बताइए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ब्लॉक केमिस्ट्री DF S ब्लॉक P ब्लॉक, इनके बारे में बताइए थोड़ा सा। सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मोस्टली NCERT से ही कवर थी, मोस्टली क्या पूरी NCERT से कवर हो रही थी। बहुत इजी क्वेश्चन NCERT से पूछे गए थे, जैसे द एलिमेंट्स बिलोंग टू कैल्कोजन फैमिली, मतलब और फॉर्मिंग कंपाउंड ऑक्सीजन सिलिकॉन टैलेरियम पोलोनियम वाले क्वेश्चन, मतलब इनमें से कौन से कंपाउंड कैल्कोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था जब PCl5 को हमने हाइड्रोलिसिस करा तो इसमें जो प्रोडक्ट बना उसमें नॉन आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम कितने होंगे। जैसे हमने PCl5 की हाइड्रोलिसिस करी तो हमारा क्या बना H3PO4 और उसमें 0 होते हैं नॉन आयनाइजेबल, मतलब एवरी हाइड्रोजन इज आयनाइजेबल इन H3PO4, सो उसका आंसर 0 था। मतलब बहुत इजी क्वेश्चन, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। एक क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, जैसे BaCO3 जो था वो सोल्यूबल है अनसोल्यूबल है और ऊपर से नीचे जाने पर एल्कली अर्थ मेटल में सोल्यूबिलिटी घटती है बढ़ती है, उससे क्वेश्चन पूछे गए थे।
मैं जानना चाहूँगा कि जो नेम रिएक्शंस हैं या कन्वर्जन्स हैं या मैकेनिज्म है ऑर्गेनिक की, वो क्या एनसीईआरटी से भी थी या कुछ हायर लेवल के क्वेश्चंस भी उसमें पूछे गए थे? सर एनसीईआरटी ऑर्गेनिक तो मेरी बहुत वीक है, तो मैंने इसकी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन तो स्किप ही कर दिए थे लगभग। और मतलब क्वेश्चंस में माई जीओसी और आइसोमेरिज्म इवन ऑन अ टफर साइड, तो मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो क्वेश्चन आया था जीओसी में, मतलब एक 2,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन था, उसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बताने थे। तो उसमें स्टीरियो आइसोमर्स मतलब जैसे एक तो ट्रांस, दो एक तो सिस हो गया और एक ट्रांस हो गया, तो सिस और मैंने 2 लगा दिया, मुझसे गलती हो गई, जबकि उसमें 3 था, क्योंकि जब वो ट्रांस बनेगा ना तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगी, तो उसमें 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। पहले वाले में जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगी, तो केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन या नीट की प्रिपरेशन या केवीपीवाई या एनटीएससी की प्रिपरेशन शुरू करते हैं और अगर मोटिवेशन इफ इट इज़ लैकिंग इन द बिगिनिंग, तो वे अपने आप को कैसे थ्रू आउट दी प्रिपरेशन, होल द ईयर और 2 ईयर या 1 ईयर की प्रिपरेशन के दौरान वे कैसे मोटिवेटेड रख सकते हैं, आप बच्चों को बताइए। सबसे पहली चीज़ तो आप ज़्यादा उन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, जैसे कोई बच्चा कितना पढ़ रहा है या टेस्ट सीरीज़ में स्कोर कम आ रहा है और उसका ज़्यादा आ रहा है, तो आप उससे डिमोटिवेट हो जाएंगे। और मतलब आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने लगेंगे, मार्क्स पर, कॉम्पिटिटिवनेस पर, और पढ़ाई पर फोकस कम हो जाएगा, जिससे कि आपके प्रिपरेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। वो आपको बाद में पता चलेगा जितना आपका इफेक्ट हो जाएगा, उसका बाद में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जो है मतलब आप इन चीज़ों में मत पढ़िए, आप सिर्फ अपने क्वेश्चन पर, सबसे मेन चीज़ आप क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। जब आप क्वेश्चन पर फोकस करेंगे तो आप मतलब अगर 40 क्वेश्चन कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिससे कि आप मतलब डिमोटिवेट भी होंगे तो वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होंगे। अगर आप मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस छोड़ देंगे, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस अपने आप ही ख़त्म होता चला जाएगा। और दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए मतलब आपको मतलब टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और उसे रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम टाइम टेबल बनाएंगे और एकदम फॉलो हो जाएगा। और टाइम टेबल जो है मतलब एकदम रियलिस्टिक बनाइए, ऐसा मत बनाइए कुछ भी बना लिया कि आपने उसमें 1 घंटे की कभी ब्रेक नहीं डाला या चाय पीने तक का टाइम नहीं डाला। वो मतलब वो देखने में अच्छे लगता है लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाते। तो आप ऐसे टाइम टेबल बनाइए जो बहुत फ्लेक्सिबल हो, मतलब आपका उसमें बाहर जाने का भी टाइम हो, उसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट का भी टाइम हो, तो आप कंसिस्टेंसी तभी मेंटेन कर सकते हो जो आप बहुत फ्लेक्सिबिलिटी से आप प्रिपरेशन कर रहे हो। मतलब तीनों सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दीजिए, एक सब्जेक्ट को ऐसा मत कीजिए कि उसे ही पढ़े जा रहे हैं, तो आपका मतलब उससे मतलब इंटरेस्ट मतलब और सब्जेक्ट में कम होता चलाएगा और आप कंसिस्टेंसी लूज़ कर देंगे। मोहम्मद तला, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब आपका जेईई एडवांस का पेपर कब है और उसकी आप किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं? सर मैं जेईई एडवांस हेल्ड ऑन, मेरा जेईई एडवांस जो है 3 अक्टूबर को होने वाला है, 1 महीने बाद लगभग। तो उसके लिए मैं अभी तो मतलब इतना ज़्यादा वक्त तो बचा नहीं कि मैं दोबारा कॉन्सेप्ट को पढ़ूंगा या दोबारा लेक्चर देखूंगा। तो मैंने अभी जो है फ़िलहाल एक मतलब 40 ईयर्स आता है ना, उस पर फोकस करूंगा। मैं 40 ईयर्स नहीं करूंगा, मैं 20 ईयर्स ही कर लूँगा अभी फ़िलहाल। और प्लस मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वो होते हैं क्वेश्चंस, हमारा जो इंस्टीट्यूट था उन्होंने हमें कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो मैं उन्हीं पे फोकस उन्हें बार बार कर लिया। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 20 ईयर्स को मैं एक बार कर लिया, उन चीज़ों को मैं दोबारा कर लूँगा ना, तो फिर वो मतलब बैठ जाएंगे माइंड में, क्वेश्चन किस तरह सोल्व हो रहे हैं, किस तरह का पैटर्न दिख रहा है। तो उससे मुझे ऐसा अजीब नहीं लगा क्वेश्चन एग्जाम में जाकर के कितनी अजीब सा क्या गया। मोहम्मद तला, मैं जानना चाहूँगा आपने जो जेईई मेंस के 3 अटैम्प्ट दिए हैं उनमें आपकी सबसे अच्छी परसेंटाइल कौन से अटैम्प्ट में आई थी? सर मैंने 3 अटैम्प्ट दिए हैं, एक तो फरवरी वाला दिया है, एक मैंने ये वाला दिया अप्रैल वाला, और ये दिया है मई वाला। फरवरी वाले में मेरी 93 थी और क्या नाम है मई वाले में अभी रिजल्ट आया नहीं है। और अप्रैल वाले में मेरी थोड़ी कम रह गई थी क्योंकि मैं एडवांस पर फोकस ज़्यादा कर रहा था, मेरी 90 रह गई थी। ओके तला, आपने बहुत अपना बिजी शेड्यूल में से हमें वक्त दिया एमएएसआर मोटिवेशन चैनल को, हम आपके उसके लिए बहुत आभारी हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, थैंक यू सो मच। एंड इसी तरह से आप तैयारी करते रहिए। हमारी आप एमएएसआर मोटिवेशन चैनल की आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रेट लक फॉर जेईई एडवांस एंड फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। Sir, thank you for calling me on your channel, and by coming in your channel I feel an amazing and unexpected experience by talking to you which I cannot be explained in vocabulary. Thank you, sir. Okay, thank you.